Namaskar students, welcome back in your SST class. Hope you all are fine. So open your SST book. This is your SST book footprints. Open this book and in this book open chapter number 4. So in today's class we will discuss about chapter number 4 and the name of the chapter is temperature zone of the world. So in this chapter we will discuss about the टेम्परेचर जोन्स वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस के टेम्परेचर्स को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई टेल यू इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दीज 4 पॉइंट्स. फर्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. हम इसमें फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज torrid zone, temperate zone and frigid zone. These are the 3 types of zones. So we will discuss all these points in this chapter. Okay, so before starting this we will discuss these conversations. So in this picture you can see there are three different type of weather. First is as you can see in the first picture there is a hot season yani summer season in this picture, and there is a rainy season and there is a winter season. Okay, so there is a one girl and the name of that girl is Priya, and Priya went different places in the different months. So just read with me. First is, Hi, I'm Priya and this year I have been to different parts of India. So in this year Priya different India के different parts को visit कर रही है. तो first she went in the month of June she went to Uttar Pradesh and the weather was too hot. पहले इन्होंने जून मंथ में कहाँ पे विजिट किया? उत्तर प्रदेश में. एंड उत्तर प्रदेश इज़ अ स्टेट एंड दैट टाइम इन द मंथ ऑफ जून उत्तर प्रदेश वॉज टू हॉट ड्यूरिंग समर सीज़न. यानी कि समर सीज़न में जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है यानी कि जो प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है. एंड ड्यूरिंग द विंटर इट इज़ टू कोल्ड, और विंटर सीज़न में वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, कूल होता है. ओके, नेक्स्ट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, yes, Priya went to Mumbai in the month of August. It rained to lot all through the state there. The weather was cool as this place is close to the sea. और नेक्स्ट में हम प्रिया विज़िट करने गई है कहाँ पे? मुंबई में, और मंथ है वहाँ पे अगस्त. और अगस्त मंथ पे मुंबई में वहाँ पे प्रॉपर रेगुलरली क्या हो रहा है? वहाँ पे रेनफॉल हो रहा है. मीन्स जब वो जितने दिन भी वहाँ स्टे करी उसने देखा वहाँ पे रेनफॉल हो रहा है. एंड वहाँ का जो क्लाइमेट है बेटा, जहाँ का जो वेदर है वो कैसा है? कूल है, ठंडा है. ओके, in the next one you can see the picture. It is a picture of winter season. So in December Priya went to Manali where it was very cold. और मनाली में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है. दिस इज़ बिकॉज, क्यों? बिकॉज जो मनाली है वो कहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड पे है, मीन्स वो ऊंचाई पे है. सो दिस इज़ बिकॉज मनाली इज़ लोकेटेड ऑन अ हाई altitude. Okay, so with the help of this conversation we can find the different weather on the different places. Now just mention one factor that influence the climate of the place in your place you live in. So just write it one factor. जहाँ आप रहते हैं उस place का आपको one factor आपको यहाँ पे write करना है. Okay, now we'll start the chapter. So in this chapter we will discuss about 4 points I already told you. Influence affecting the climate of a place, torrid zone, temperate zone and frigid zone. So we will discuss all these points in this chapter. First is, yes, factors affecting climate. You know students, factors affecting climate means जो फैक्टर्स हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, हमारे क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से. तो चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? सी, फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर के डिस्टेंस होने की वजह से, हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से. डायरेक्शन ऑफ विंड्स मीन द विंड्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है उसकी वजह से. नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर एंड रेनफॉल. जो टेम्परेचर यानी कि तापमान और जो रेनफॉल है बारिश का जो गिरने का प्रोसेस है उसकी वजह से. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और सी के डिस्टेंस की वजह से. सो दीज आर 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. हमारी ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये हमारे क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं. एंड द सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो हेयर टेम्परेचर जोन्स. सो देयर आर 3 टेम्परेचर ऑफ जोन्स. First is torrid zone, second is temperate zone and the third one is frigid zone. So we will discuss all these zones in a detail in this chapter. So first point is here, factors affecting the climate of a place. So first we will discuss all these 5 factors जो हमारे climate को affect करते हैं. Okay.
Climate is the average weather condition of a place over a long period of time over a large area, while the weather changes from डे टू डे. यस, क्या होता है देखो बेटा, क्लाइमेट जो होता है वो हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, मतलब पूरा ईयर्स, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब कंटिन्यूसली वो वहाँ की जलवायु होती है. क्लाइमेट का एग्जैक्ट मीनिंग ही क्या होता है, जलवायु होती है. अब जैसे सपोज़ आप रहते हैं राजस्थान में, अगर आप रहते हैं जयपुर में, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सेम रहेगा. चेंज क्या होता है, वेदर, क्योंकि क्लाइमेट क्या है हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है और ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में एक जैसा ही क्लाइमेट रहता है. वाइल द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, आई टोल्ड यू बेटा कि चेंज क्या होता है, वेदर हमारा डे टू डे चेंज होता है. इवन डे में भी आप देखेंगे, मॉर्निंग में अगर कुछ वेदर है तो इवनिंग तभी वो चेंज हो जाता है. मॉर्निंग में आप देखते हैं कि थोड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते आप देखेंगे कि वो गर्म होने लगता है. तो वेदर जो होता है वो हमारा डे टू डे चेंज होता है. सपोज़ मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि इवनिंग होते होते रेनफॉल हो गया. रेनफॉल होने की वजह से क्या हुआ कि वेदर में चेंज आ गया और हमें ठंडा महसूस होने लगा, ठीक है ना. सो वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड द क्लाइमेट इज नॉट चेंज रेगुलरली. क्लाइमेट रिमेन्स द सेम ईयर आफ्टर ईयर, मीन्स दिस क्लाइमेट जो होता है वो हर साल, मीन्स दैट सेम ईयर में भी हर साल चेंज, मतलब चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, ठीक है. क्लाइमेट ऑल्सो इफेक्ट्स आर वे ऑफ लाइफ. जो क्लाइमेट है वो हमारी जो वे ऑफ लाइफ है उसको भी इफेक्ट करता है, मतलब हमारे रहन सहन के तरीके को इफेक्ट करता है. द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब किन किन फैक्टर्स की वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट करता है, वी विल डिस्कस वन बाय वन. One more thing students, climate affects our जैसे plant life, animals life and way of people life and their food and their wear, मतलब ड्रेसिंग सेंस. क्लाइमेट की वजह से हमारे ये सब चेंजेस होते रहते हैं. हाउ, सी सपोज़ आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा खान पान है, जो हमारा ड्रेसअप है, क्या वो सेम केरला में है? नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या रहता है, वो हाई एल्टीट्यूड पे है, इसलिए वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे बहुत ठंड रहती है और वहाँ का जो खान पान है वो उसकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो सेटअप होता है. और केरला में गर्मी ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, केरला में लोग कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं, तो जम्मू कश्मीर में लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. वहाँ पे लोग गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में. तो केरला में लोग ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं. तो ये सब चीज़ें हमारी ये सब चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, क्लाइमेट की वजह से होते हैं. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से डिस्टेंस होने की वजह से भी हमारे क्लाइमेट किस तरीके से चेंजेस होते हैं. सी, द रेज ऑफ द सन फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड बिकम मोर स्लैंटेड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव डिफर ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड्स. द प्लेसेस ऑन द इक्वेटर और नियर इट रिसीव्स द मैक्सिमम सनलाइट. अब क्या होता है बेटा, देखो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ सन एंड दिस इज आवर अर्थ, है ना, द मॉडल ऑफ अर्थ. सो आप देखते हैं दीज आर द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड पैरेलल, यानी कि जो हमारी सेंटर वाली लाइन है दिस इज इक्वेटर. ओके, इक्वेटर लाइन है और इसके पैरेलल ऊपर नीचे जो लाइन्स जा रही है नॉर्थ पोल और टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दीज आर द पैरेलल लैटिट्यूड लाइन्स, है ना. इक्वेटर जो एरिया है हमारा, आप देखेंगे वहाँ पे जो सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है, मीन्स दैट उस एरिए में जब हमारी अर्थ रोटेट करती है, उस एरिया में जो भी प्लेसेस आते हैं वहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है. ओके, और आप देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो सन की रेजेस है हमारे पोल्स पे वो स्लैंटेड वे में जा रही हैं, यानी कि थोड़ी तिरछी जा रही हैं, स्लैंटेड में तिरछी जा रही हैं. तो वहाँ का जो एरिया है वो वहाँ पे जो सनलाइट है वो कम पहुँचती है, डायरेक्टली नहीं पहुँचती है, और वहाँ पे वो स्प्रेड भी हो जाती है, पूरे उसमें फैल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है. तो इक्वेटर वाले जितने भी एरियाज जो पार्ट होते हैं वहाँ पर हमारी गर्मी ज़्यादा होती है. ओके, now yes, इक्वेटर टू नियर इट रिसीव्स अ मैक्सिमम सनलाइट. ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट किस एरिया को मिलती है, जहाँ वो जो एरियाज हमारे इक्वेटर लैटिट्यूड के नियर होते हैं. सो दीज प्लेसेस आर हॉट. क्या होते हैं वो प्लेसेस हमारे, हॉट होते हैं. द रीजन अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और जो रीजन हमारे इक्वेटर से अवे होते हैं, अवे यू नो दूर होते हैं, एंड नियर द पोल्स, और पोल्स के पास होते हैं. मीन्स दैट सी
यस ये जो हमारा एरिया है जो इक्वेटर से क्या है थोड़े दूर है और पोल्स के पास है, इट इज़ नॉर्थ पोल एंड इट इज़ साउथ पोल, ये इन पोल्स के पास में है। द रीजन अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड नियर द पोल्स रिसीव स्लैंटिंग रेज। स्लैंटिंग मैंने आपको बताया कि स्लैंटिंग मतलब तिरछी, उनको सनलाइट जो है वो तिरछी रेखाओं में मिलती है। इन दीज रीजन्स द हीट स्प्रेड ओवर अ लॉन्गर एरिया। तो इस एरिया में क्या होता है कि वो हमारी अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से जो हीट है वो पूरा लॉन्ग एरिया में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से यस लॉन्ग एरिया मेकिंग दीज प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर लेस हॉट, जिसकी वजह से वो इक्वेटर के कंपैरिजन वो एरिया जो होते हैं वो कम गर्म होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। अब एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई। जब भी कोई एरिया पर्टिकुलर कोई प्लेस की बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो बाकी रीजन या बाकी प्लेसेस के कंपैरेटिवली क्या होगा? कोल्ड होगा। तो द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट। एंड इन्फ्लुएंसेस मीन्स होता है प्रभाव पड़ना, हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट करते हैं। अगर कोई प्लेस हाइट पे है, ऊंचाई पे है, सी लेवल से भी ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो वो हमारे जो क्लाइमेट है वो उसको इफेक्ट करते हैं। द हाइयर वी गो, जैसे आप देखते होंगे हम थोड़े ऊंचाई पे जाते हैं, द कोल्डर इट गेट्स, और हम लोग क्या फील करते हैं? ठंडा महसूस करने लगते हैं। एरिया यस द कोल्डर इट गेट्स, areas located at high altitude experience a cold climate। और जो एरियाज हमारे हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड हैं, मतलब वो वहाँ बसे हुए हैं, मीन्स दैट वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है? कोल्ड है। वहाँ के जो लोग हैं वो कैसा क्लाइमेट को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं? कोल्ड क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। दिस एक्सप्लेन वाई हिल स्टेशंस आर कोल्ड इवन इन समर। सो ये हमारा जो फैक्टर ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों समर सीजन्स में भी हिल स्टेशंस इतने ठंडे होते हैं। और आप लोग भी जाते होंगे, मोस्टली आपने देखा होगा कि समर सीज़न में लोग समर सीज़न में सारे लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? हिल स्टेशंस पे अपने वेकेशंस को स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे समर सीज़न में भी क्या होता है? समर सीज़न पे भी वहाँ पे जो वहाँ का वो क्लाइमेट है वो कूल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर डायरेक्शंस ऑफ द विंड। यस, डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब सेकेंड इफेक्ट है हमारा बेटा विंड डायरेक्शंस की वजह से, मीन्स जो हमारी जो विंड्स ब्लो करती हैं वो किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही हैं, दैट इज ऑल्सो अफेक्ट टू चेंज आर क्लाइमेट। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन मेक प्लेस कोल्ड। अब जब हमारी विंड ब्लो करती हैं फ्रॉम कोल्ड रीजन, यानी कि जो ठंडे इलाके हैं हमारे, वहाँ से जब हमारी विंड ब्लो करती हैं तो वहाँ का जो एरिया है वो क्या होता है? कूल होता है। सिमिलरली विंड्स कमिंग फ्रॉम हॉट रीजन, और जैसे ही जो विंड्स ब्लो हॉट रीजन की तरफ से करती हैं, सच एज डेजर्ट मेक अ प्लेस हॉट। अब जैसे डेजर्ट की तरफ से जो विंड्स ब्लो करेंगी वहाँ पे क्या होगा? डेफिनेटली वहाँ गर्मी है, तो जो गर्म हवाएं चलेंगी और वहाँ पे गर्मी होगी। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी कॉजेज ह्यूमिडिटी एंड मेक अ प्लेस ह्यूमिड। और ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा? ह्यूमिडिटी मीन्स उमस, यानी कि जो आज के टाइम की जो गर्मी आप फील कर रहे हो ना, वो हमारी क्या है? ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है, जिसमें बहुत ज़्यादा चिपचिप होती है, गर्मी लगती है और पसीने आते रहते हैं। तो ये क्या किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सी। सो वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी, जो विंड्स हमारी सी से ब्लो करती हैं, कॉजेज ह्यूमिडिटी, वो किसका कारण होती है? ह्यूमिडिटी। एंड मेक अ प्लेस ह्यूमिड, और उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बनाती हैं? वो ह्यूमिड, यानी कि चिपचिपा, यानी कि उमस वाली गर्मी वहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। Next topic we will discuss in the next class, it is temperature, humidity and rainfall. Okay, so that's all for today. Thank you so much and have a nice day.